students, welcome to this second lecture on logarithm. In last lecture we have studied definition of logarithm. What was the definition of logarithm? We just revise here. Y is equals to a raised to x. Definition क्या है logarithm की? If y is equals to a raised to x is the number where a should be greater than 1. a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Greater than 1 and a belongs to R and a should not be equals to 0. a should not be equals to 0. Then what we can write here? Log of y base is a is equals to x. So that was the definition of logarithm. And now in this lecture we shall study laws of logarithm here. Laws of logarithm, these are the formula to simplify all the examples from this chapter. So we will study one by one how they are formed and how they are learned. Okay. So I will write here laws of logarithm. First law is, I will write here log of m into n. Means अगर m n these are two numbers in multiplication and with base a, then this multiplication will be converted into addition. So it can be written as log of m base a plus log of n base a. Means what was this property? Property is if there is a multiplication of two number in logarithm, so separately log of first number plus log of second number. अगर सपोज यहाँ पर हमें log of ऐसे बहुत सारे नंबर है a, b, c, d, सब नंबर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, फिर भी हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? log of a प्लस log of b प्लस log of c. यानी यहाँ पर जितने नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है उतने ही लॉगरिथम में क्या हो जाते हैं? एडिशन हो जाता है. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second property is log of m divided by n. Means यहाँ पर क्या किया हमने? डिवीजन अगर है to the base a, then it can be written as log of m minus log of n with base a. So in division, if there is a division of two numbers in logarithm, so that will be converted into subtraction. Multiplication is converted into addition and division is converted into subtraction. Third is, from this we can write this formula log of 1 upon n with base e. Okay? तो इसका जो आंसर है वो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a. मीन्स 1 अपॉन किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल है 1 अपॉन n, देन इट्स फॉर्मूला इज माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a. ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? इसका ही यूज करके. अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ n होगा, लेकिन वी नो दैट log of 1 is always equal to क्या होता है? 0 होता है. So देखते हैं यहाँ पर अप्लाई करके log of 1 minus log of n to the base a to the base a. log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो इस पे अगर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो हमें आंसर सिर्फ क्या मिलता है? 0 minus log of n to the base a. In this way. This is third property. Then fourth one is log of a raised to n.
और विल राइट इन द mn log of m रेज टू n अगर है तो ये जो नंबर है ये n, ये कहाँ पर लिख सकते हैं हम, सामने मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं n into log n, मीन्स इफ देयर इज अ पावर टू लॉगरिथम तो ये जो पावर का जो फंक्शन है, जो कुछ भी फंक्शन है या फिर नंबर है, वो क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में सामने की तरफ हम पोजीशन में लिख सकते हैं. नाउ this is fourth property. Then we will see fifth one. Fifth one property is log of m to the base n. If log of m to the base n is there, then we can change base of this logarithm. हम इसका बेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो इसका बेस अगर हमें सपोज करना है a, ओके, तो log ऑफ m लिया, उसका बेस a हो गया और बाद में डिवीजन में log ऑफ n और इसका भी बेस क्या कर दिया, a. मीन्स यहाँ पर इसका बेस क्या है, n है और बेस चेंज अगर करना है तो क्या करना है, हमें सिंपली ये दोनों का लॉगरिथम लेना है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n और जो कुछ भी बेस हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो यहाँ पर लिख देंगे. So in this way, this is the fifth property and its name is base changing property. This is base changing property. With the help of this property, we can derive one more property here. So sixth property I will write log of m to the base n is there. तो सपोज अगर यहाँ पर हमने इसका बेस n किया, ओके, एक्चुअली अभी यहाँ पर बेस क्या है, n है. अगर हमने बेस चेंज किया तो वो लिया n, तो log of m to the base m divided by log of n to the base m is equals to, but we know this property, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी क्या है, log of a to the base a अगर रहा तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है. सो यहाँ पर log of m to the base m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन log of n to the base n. यानी यहाँ पर हमने चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी की तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन, मीन्स इसे हम सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, log of m to the base n अगर है तो सिंपली ये दोनों की पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. काय के लागू इथे दोन्ही ची पोजीशन चेंज झाली. आधी बेस काय होता, n होता, इथे काय आला, m आला. तो कसं करणार, 1 अपॉन मध्ये log ऑफ क्या करेंगे, 1 अपॉन लिख देंगे और ये दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. सो चेंज क्या होगा, n to the base n. तो ये होगी एक्चुअली आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी. Then seventh one I have written the log of a to the base a is 1, means बेस का नंबर और जिसका log ले रहे वो नंबर इक्वल है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर log of 2 to the base 2, उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, that is equals to 1. And eighth one is log of 1 to the base a is 0. log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सो दीज आर द लॉज ऑफ लॉगरिथम हियर. वी हैव टू लर्न दिस टू सॉल्व एग्जांपल्स. राइट डाउन दिस. Now we shall practice some of the examples on logarithm which are asked in examination for 2 marks. This type of example is asked in examination, LSBT examination frequently. So यहाँ पर करना क्या है, evaluate following. There are total 6 questions I have written here. One by one we will solve these questions. सो यहाँ पर करना क्या है हमें कि इस लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व देम वी विल स्टडी 1 by 1 हियर. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, दैट इज क्वेश्चन 1 से.
तो आई विल राइट हियर क्वेश्चन 1 गिवन, आई विल गिव नंबर। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर गिवन इज log of 3 to the base 81, और इसकी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसकी वैल्यू सपोज x है, वो कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेफिनेशन वी हैव टू अप्लाई। I will write definition here once again. Log of y to the base a is equal to x रहा, then what we can write, a raised to x is equals to y हम लिख सकते हैं, यानी a के पावर में ये x होता है और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू y हो जाती है। यही फॉर्मूला अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो 81 के पावर में क्या लिखना पड़ेगा हमें, x, so 81 raised to x is equals to 3। ओके, अभी यहाँ पर हमें कुछ पावर्स के जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 3 है, ओके, तो ये 81 को भी हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं कि 81 क्या है, कोई पावर है 3 का। तो देखते हैं यहाँ पर आई विल राइट हियर, नोट दिस, नोट फर्स्ट वन इज 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 raised to 4 is 16, we will need this, so I will write here the formula। third one is 2 raised to 5 होता है 32, then fourth one 3 का क्यूब होता है 27, fifth is 3 raised to 4 is 3 raised to 4, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 3s are 6, 6 plus that 3 is equals to that is 2, that is 81। 3 की पावर में 4 क्या आएगा 81। सिक्स्थ वन वैल्यू इज 3 raised to 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 243। सेवेंथ वन इज 3 raised to 6 आता है 729। एट्थ वन इज 7 का स्क्वायर है 49, 7 क्यूब इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 9 7 का 63, 6 4 into 7 28 plus 6 is 34। so these value we will require here, so I have written here। तो यहाँ पर 81 आ गया। 81 क्या है एक्चुअली 3 के पावर में क्या आएगा, 81 इज 3 के पावर में 4, सो 3 raised to 4 और उसके पावर में क्या है x इज इक्वल टू 3। नाउ वी नो वन लॉ ऑफ इंडेक्स हियर, क्या है वो फॉर्मूला, a के पावर में m raised to n रहा, व्हाट वी कैन राइट a raised to mn वी कैन राइट। सो ये 4 और x का हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, सो 3 raised to 4x इज इक्वल टू 3 raised to 1। 3 के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 होता है। अभी यहाँ पर वंस अगेन 3 के पावर में 4x है और यहाँ पर भी 3 ही है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा a raised to n इज इक्वल टू b raised to n रहा। ओके सॉरी ऐसे लिखते हैं हम, a के पावर में n इज इक्वल टू 1 के पावर में n है, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, बेस अगर सेम है तो उसके पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अगर यूज करेंगे तो 3 का पावर 4x यहाँ पर विल बी इक्वल्स टू 1, और फाइनली अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 1/4। So in this way we have got value of this first example here। You note down this and we will go to this second example। You have a look at this, you understand and write down in your notebook। Okay, now second example I will solve here। I will rub this। Now question 2 क्या है, log of
243 to the base 7 is equal to, suppose it is x. अभी हमें पता है डेफिनेशन क्या है लॉगरिथम की, ये 7 यहाँ पर लिखा, उसके पावर में x इज इक्वल टू 243. कैसी चेन है ये, 7 के पावर में x लिखो और इज इक्वल टू ये नंबर लिख दो इन दिस वे. अभी यहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखे हैं हमने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक्चुअली इट शुड बी 3 हियर, it should be 3. So I should have written here 3 here, because I can see here 243 is the in the power of 3. So 3 raised to x is equal to 343. I can write now 3 raised to x. Now 243 is nothing but 3 के पावर में 5 है. So I will write 3 के पावर में 5. Once again this formula, a के पावर में x रहा इज इक्वल टू b के पावर में भी a के पावर में भी अगर y है, अगर बेस सेम है तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y. सो x इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट हियर 5. सो इफ यू नो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली. राइट डाउन दिस. Third example, question 3 we will solve here. Question 3 क्या है, log of 7 to the base 343 is equal to x. x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बेस है 343 पावर में क्या आएगा x इज इक्वल टू 7. अभी ये टेबल में जो वैल्यूज लिखे हैं दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज यहाँ पर 343 क्या है, एक्चुअली 7 का क्यूब है. सो 7 क्यूब आई कैन राइट 7 क्यूब के पावर में x इज इक्वल टू 7. वंस अगेन अगर यहाँ पर a के पावर में n और पावर में m रहा तो हम इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन n इंटू m कर सकते हैं. तो ये 3 और x का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 रेज़ टू 3x इज इक्वल टू 7. 7 के पावर में भी कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है. सो हियर ऑल्सो बेस इज सेम, सो 3x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर क्या करते क्या है हम कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये गिवन नंबर को भी हम उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए. हर एक एग्जाम्पल में हमने यही ट्राई किया है. एंड x की वैल्यू क्या है 1/3 here. So in this way we got answer of question 3 there. Now we will solve question number 4. First you take a note of this. Question 4. It is looking a bit difficult here, but we will solve this. Let's see what can be done in the question number 4. So, first of all, given is question number 4 का solution कर रहे हैं हम. Given is 2√3 raised to 5. बेस इज 12 और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, इफ लॉग ऑफ दिस. ओके, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, लॉग ऑफ y टू द बेस a अगर रहा देन आई कैन राइट इज इक्वल्स टू x. implies a के पावर में x इज इक्वल टू y. ये क्या है हमारी डेफिनेशन है जो कि ओवरऑल थ्रू इन दिस एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड हियर. तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 12 के पावर में क्या आएगा x. 12 रेज़ टू x इज इक्वल टू 2√3 रेज़ टू 5. अभी तक
तक के जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए वहां पर हमें पता है कि यहाँ पर जिसके पावर में एक नंबर है वो उसका जो बेस है वही यहाँ पर आना है। ओके, तो 12 को हम 2 इंटू रूट 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। 12 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, ये तो पता है आपको। ओके, 12 क्या होता है 4 इंटू 3 होता है, और हमें यहाँ ये भी पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2 और 3 का स्क्वायर रूट क्या है √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ओके, ऐसे डायरेक्टली किसी भी स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते हम कि यहाँ पर करना क्या है स्क्वायर रूट भी लेना है और स्क्वायर भी करना है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें 12 कौन से फॉर्म में चाहिए 2 इंटू √3 के फॉर्म में चाहिए। अभी यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 2 और √3 इसका स्क्वायर, यानी 12 इज नथिंग बट 2 √3 का स्क्वायर। 12 ची व्हॅल्यू काय झाली 2 √3 चा स्क्वेअर वाटल्यास आपण सॉल्व करून बघू। 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 3 चा √3 चा स्क्वेअर रूट 3, 4 इंटू 3 परत काय येतोय 12 येतोय, म्हणजे आपण जे केले ते बरोबर केले। 12 च्या जागेवर आता मी काय लिहिणार 2 √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, सो इथे लिहिणार 2 √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, आणि याच्या पावरला काय आहे परत x आहे। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। फक्त 12 ची व्हॅल्यू काय आहे 2 √3 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है 2 √3 ब्रैकेट रेज टू 5। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या हो गया बेस सेम हो गया, मीन्स a के पावर में x इज इक्वल टू a के पावर में y रहा, देन व्हाट वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू y। सो यहाँ पर एक्चुअली 2 और x का मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 5 and finally what we get here is 5/2. In this way we got answer of this question here. It was looking difficult, but after solving this kind of calculation it was very easily actually. Hope you have taken screenshot of this or take note of this in your notebook. Now we will solve 5th question here. Fifth question is, it is in a decimal form. So log of 0.25 फिफ्थ क्वेश्चन का ये आंसर कर रहे हैं हम, टू द बेस 4 इज इक्वल टू सपोज x। ओके, इसकी वैल्यू सपोज x है, तो 4 के पावर में क्या लिखेंगे हम x, बिकॉज आवर डेफिनेशन इज इन दैट वे। डेफिनेशन का यूज किया लॉगरिथम के। अभी इस एग्जाम्पल में हम विदाउट डेफिनेशन करेंगे सॉल्व डायरेक्टली। 4 के पावर में x और इक्वल टू में क्या लिखना है 0.25। ओके, यहाँ तक तो हो गया डेफिनेशन का यूज करके, लेकिन यहाँ पर 0.25 को हम 4 के फॉर्म में हमें ट्राई करना है लाने के लिए। तो पहले तो इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स आर देयर। ओके, सो इफ वी शिफ्ट दिस 2 डेसिमल पॉइंट टू द राइट हियर, तो कैसे होगा ये, अगर ये यहाँ पर शिफ्ट किए तो ये 25 बन जाएगा, और उसके डिवीजन में क्या लिखना पड़ेगा हमें 2 जीरोस लिखने पड़ेंगे 1 के बाद। सो 0.25 इज इक्वल्स टू 25/100 एंड ये है 4x। बट 25/100 इज नथिंग बट 1/4 हियर, 4x। अगेन अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 कैन बी रिटन एज 4 के पावर में -1। ऐसा क्यों, बिकॉज 1/a अगर रहा देन आई कैन राइट a raised to -1, यानी अगर नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको अगर हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो उसकी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 4 की पावर 1 थी, ऊपर गया तो उसकी पावर माइनस होगी। सो 4x इज इक्वल टू 4:-1। 1/4 को क्या लिख दिया 4:-1। अभी यहाँ पर भी बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू, we can easily write x is equals to -1.
So this was actually a very easy example, but यहाँ पर सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि 25 को हमें पहले तो एक डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में से एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. Now we will solve sixth example. Sixth example is again looking like a different one, but after solving we can understand this example very well. So sixth one we will write here. Sixth example is log of cube root of 1000 to the base 10 is equals to की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. So suppose this is a x here. By using definition of logarithm, 10 raised to x is equals to cube root of 1000. Okay. Then 10 raised to x. अभी किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट है तो सपोज a का क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या होती है, 1/3 होती है. मीन्स यहाँ पर 1000 ये जो नंबर है उसकी पावर क्या है, 1/3. अगेन 10 raised to x is equal to, now 1000 can be written as 10 cube और ब्रैकेट में 1/3. 1000 को हमने कैसे लिखा, 10 के पावर में 3. सो यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो सकता है बिकॉज ये डायरेक्टली क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है. सो 10 raised to x is equal to 10 raised to 1. यहाँ पे 1 रहेगा एंड फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ x देयर. So in this way we have solved all these 6 examples which are frequently asked in MSBT examination for 2 marks in question number 1. So you take a note of this all questions, 6 questions, and prepare this table, learn these values in order to solve these examples very easily. For now we will stop here in this video. In the next video we shall learn some of the more example on logarithm, but they will be of a different type. So you keep watching this video in order to learn various aspects, various topics of basic mathematics of our polytechnic students. So if you want to know how to solve another type of example, you will watch another video on this logarithm that will be shortly posted on our YouTube channel. So subscribe this channel, like and share with your friends, and thank you for listening and watching my videos. Thank you very much.